Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher, Miss Sabah Salim here from Bank Road campus. I am teaching you Art of Miniature Painting. The course code is FINE2121 and I am giving you the second lecture. The topic is Introduction to Vasli. The contents are Introduction to Vasli, process of making Vasli, and then in the end, quizzes. In the last lecture, I told you about miniature painting, its definition, and the purpose of painting miniature, the medium, and now I will tell you about Vasli. What is Vasli? Vasli, also referred to as Vasli paper, is a type of handmade paper used especially for painting miniatures. It was devised in India in the 10th century and figures widely in Mughal era painting. Vasli is used as a canvas for making miniatures. The term derives from a Persian word vasl, which means union or coming together, oneness, etc. Vasli is an acid-free paper and it has archival qualities. Paper-eating insects cannot eat it because of a poison copper sulfate, जिसको हम उर्दू में नीला तोता कहते हैं. Use its preparation. The glue typically used to paste sheets together is also acid-free, being made out of cooking flour. जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने इसमें पढ़ा कि वसली इज बेसिकली अ पेपर जो स्पेशली मिनिएचर के लिए यूज किया जाता है. ऑयल पेंटिंग में हम कैनवस, प्लाईवुड, लासानी यूज करते हैं, बट वी यूज वसली मोस्टली इन मिनिएचर्स. द टर्म derives फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड वसल. ये पर्शियन वर्ड है, वसल से निकला है, जिसका मतलब यूनियन है, कमिंग टुगेदर है, वननेस है, एक होना है, आपस में जुड़ना है. ठीक है. ये एक एसिड फ्री पेपर होता है. इसको इस तरह से तैयार किया जाता है. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरह से तैयार करते हैं, इसका क्या प्रोसेस है. ये एसिड फ्री पेपर होता है. इसमें इस तरह से ग्लू लगाई जाती है, वो ग्लू लगाई जाती है जो इंसेक्ट्स पेजेस को खाते हैं, लाइक जो बुक्स में होते हैं, ये उससे एसिड फ्री होती है. इंसेक्ट्स इसको नहीं खा सकते. इसमें इस तरह से ग्लू लगाई जाती है ऐसे प्रोसेस से कि पेंटिंग की लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है. जो सरफेस है उस पे आप इजीली वाटर कलर्स कर सकते हैं. वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और ओपेक कलर्स भी हो सकते हैं. Process of making Vasli. Vasli basically consists of 4 or 8 layers of paper. जी, वसली जो है वो बेसिकली 4 या 8 पेपर्स पे कंसिस्ट करती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मिनिएचर. अगर साइज स्मॉल है तो ज़्यादा शीट्स हैं और अगर बड़ा साइज है तो शीट्स कम लगाई जाएंगी बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द पेपर. वसली की बेसिकली जो पेपर है वो हम मोस्टली आइवरी शीट यूज़ करते हैं. उस शीट्स की हम 4 to 8 लेयर्स
डिपेंडिंग ऑन योर डिमांड कि आपको कितनी हार्ड वसली, कितनी हार्ड शीट चाहिए, उस पे आप वसली बना सकते हैं that are bound together with some good glue. Wasli has smooth surface and provides strong base as compared to ordinary paper, which is the requirement of this style of painting. These days, ready-made glues are available in the market, but a few artists still prepare their own glue using the traditional techniques. Many methods were used to prepare it. One of them is very simple, in which fine flour maida is soaked in the water for some time and then it is boiled. जी स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा कि इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ट्रेडिशनल वे भी है और आजकल भी जो लोग बनाते हैं वो प्रोसेस भी है। और इसकी पहले लोग ग्लू को भी तैयार करते थे, लेकिन अब जो है वो इसकी ग्लू भी इजीली अवेलेबल है मार्केट में। एक उसमें से सिंपल वे ये है कि आप मैदे को पानी के अंदर सोक कर लें कुछ टाइम के लिए और बाद में उसको आप बॉईल कर लें। Blue vitriol means Neela Thota is also added to the glue because it helps to prevent the paper being destroyed by different insects, especially termite. This glue has better binding force that forces the paper to stick together permanently so that it may last for centuries. After drying of these layers of paper, this thick cardboard was burnished either with a smooth stone, preferably a keek, or with a large seashell. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब वसली जो है वो तैयार हो जाती है तो हम उसको बर्निश करते हैं, उसको स्मूथ एक लेयर देने के लिए, उसको स्मूथ करने के लिए हम उसको बर्निश करते हैं। जी, नीला तोता जैसे कि आपको पता है जहर है और इसको हम ग्लू में ऐड करते हैं। जो किताबी कीड़ा होता है जो पेपर को खाता है वो इसको नहीं लग सकता बिकॉज ऑफ द नीला तोता। इससे वो मर सकता है, उसकी स्मेल से ही वो पेपर के पास नहीं आएगा, जिसकी वजह से वसली जो है उसकी लाइफ सेंचुरीज तक चली जाती है। आप पेंटिंग आपकी हमेशा के लिए सेफ हो जाती है। इसलिए हम इसमें इस ग्लू में नीला तोते को ऐड करते हैं। यू कैन मेक वसली एट योर होम। जो प्रोसेस आपको मैं बता रही हूँ आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं। और यू कैन बाय ग्लू फ्रॉम द मार्केट, और आप मार्केट से लाके इसको घर में भी बना सकते हैं। यू कैन सी द वीडियोज एज वेल फ्रॉम यूट्यूब। यूट्यूब में आपको वसली मेकिंग की वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको देख के घर में इजीली वसली बना सकते हैं। Kalam, handmade squirrel brush. Once the Wesley is dried and properly burnished, a trace was put on it. This trace was called khaka. The miniature was then ready for detail work that included the painting of features, fold and design of dress, leaves and trees of the landscape, buildings, etc. For detail work, Pardakht, mostly a single hairbrush was used and ideally it was made of squirrel's tail hair. जी, जब वसली आपकी तैयार हो जाती है आप उसको बर्निश कर लेते हैं। उसके बाद आपका स्टेप स्टार्ट होता है उसकी ट्रेसिंग, जिसको हम उर्दू में खाका कहते हैं। अब आजकल तो ट्रेसिंग शीट्स भी मिलती हैं और पहले ज़माने में artists they are so experienced, उनकी इतनी प्रैक्टिस थी कि वो डायरेक्ट ड्राइंग करते थे, उनको ट्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर
ट्रेसिंग के बाद आप जो है वो डिटेल्स निकालते हैं, कलर लगाते हैं। पहले बेस कलर आप लगाएंगे, चाहे आप किसी के ड्रेस पे बना रहे हैं, लीव्स बना रहे हैं, लैंडस्केप बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, आप उसका पहले बेस कलर लगाएंगे, देन यू ऐड शेडिंग इन इट, और लास्ट में जो डिटेल्स निकाली जाएंगी जिसको हम पर्दाफ्ट कहते हैं, वो हम स्क्विरल ब्रश से बनाते हैं। स्क्विरल ब्रश हम अपने घर में बैठकर भी बना सकते हैं, और हम लोगों को ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आप मार्केट से डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं, और आप इसको घर में भी बना सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी वे कि आप इसको घर में बनाएं। Miniature borders. As you can see in the pictures, मिनिएचर पेंटिंग्स के चारों तरफ जो डेलिकेट एंड डेकोरेटिव पैटर्न्स आपको नजर आते हैं उनको बॉर्डर कहते हैं। बॉर्डर टू टाइप्स के हैं, एक है जिदवल, इसको हम मिनिएचर की लैंग्वेज में जिदवल कहते हैं, जो 0.5 इंच का बॉर्डर होता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस ब्लू area of design border is called जिदवल। इस पेंटिंग में इस पैटर्न में आप देखेंगे कि ये जो एरिया है इसको हम जिदवल कहते हैं, और मोस्टली जो है इसका साइज 0.5 इंच का होता है। और इसके बाद जो आपको बड़े साइज का बॉर्डर नज़र आ रहा है इन दोनों इमेजेस में, इसको मिनिएचर की लैंग्वेज में हाशिया कहते हैं, जो 2.5 इंच से 3 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेंटिंग। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और इट कैन बी कम इन योर एग्जाम एज एन एग्जाम क्वेश्चन, व्हाट इज जिदवल और हाशिया। ठीक है, आपको मिनिएचर बॉर्डर में इसका पता होना चाहिए। दूसरा आपसे आपके साथ शेयर ये करना था कि why artists use borders around their paintings. It's a very simple answer. पहले ज़माने में जब मैंने आपको बताया जो मुरक्का जो बुक फॉर्म में पेंटिंग्स बनाई जाती थी, उसके इर्द गिर्द ये बॉर्डर्स बनाए जाते थे, बिकॉज जब आप बहुत सारे लोग पेंट बुक्स को पढ़ रहे हैं तो पेज को फोल्ड करते हुए पेंटिंग डैमेज ना हो, इसलिए पेंटिंग को सेंट्रलाइज करके उसके चारों तरफ बॉर्डर बनाया जाता था, सो दैट द पेंटिंग एरिया शुड बी सेफ। प्लस बॉर्डर बनाने का मकसद पेंटिंग में अट्रैक्शन और डेकोरेटिव एलिमेंट ऐड करना था, ताकि देखने वाला उसमें और इंटरेस्ट ले, उसको वो काम अट्रैक्टिव लगे। जी, अभी पहले 1 और 2 लेक्चर जो आपने सुने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्विजेस हैं। आप पहले फर्स्ट और 2 लेक्चर्स को अच्छी तरह से थॉरली पढ़ें, उसके बाद आप इस क्विजेस के जवाब दें, इससे फिर आप अपने आप को खुद जज कर सकेंगे कि आपको मेरे फर्स्ट 2 लेक्चर्स अच्छी तरह से समझ में आए हैं कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज मिनिएचर पेंटिंग रेफर टू? A. Big paintings using thick brushes. B. Small intricate painting using fine brushes, mostly done using a magnifying glass. C. Combination of thick and thin brushes to create small size paintings. It's a very easy answer. I hope आप इसको करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस, ये जो क्विजेस हैं, आपने इनके आंसर्स मुझे ऑनलाइन क्लासरूम में बताने हैं, ठीक है, सो दैट आई शुड नो कि आपको
लेक्चर आपने कितने गौर से पढ़ा था। द अदर क्वेश्चन इज देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स 4, 5 और 3। आपने चीटिंग नहीं करनी, आपने बैक पे अपने लेक्चर स्लाइड्स नहीं देखनी, आपने खुद से इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली मिनिएचर पेंटिंग्स वर केप्ट इन एन एल्बम कॉल्ड इलस्ट्रेशंस, मुरक्का, मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, इसका जिक्र मैंने अपने दोनों लेक्चर्स में काफ़ी दफ़ा किया है। आपको आई होप इसका आंसर आ जाएगा। Next question is the surface which is mostly used in miniature is firstly canvas or paper. Again, it's a very good, very easy question. Next question is Gadrang is basically a black and white painting, monochrome painting, or colored painting. Thank you so much for listening the lecture. I hope आपको जितने भी मैंने lectures दिए हैं easily आपको आ गए हैं। इन लेक्चर्स के अलावा आप लोग अपनी सर्च भी करें ऑनलाइन। आप टॉपिक्स को देखें, इसकी इमेजेस और देखें। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड स्लाइड्स टीचर्स आपको इतनी डिटेल्स में नहीं बता सकती। आप इससे मज़ीद और अगर नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।